क्या हाल है? गुड मॉर्निंग. Today we are, what is the topic of the day? Okay. What is administration and the management? Okay, no issue. So today the topic of the day is the difference between the administration and the management. Hey, you know? So why the question arises to differentiate between the administration and the management? So most of the people are, or there is a common tendency among the people to use the word interchangeably. कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, ओके, और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत खराब है, ओके. The people are using the term interchangeably without giving much effort. ठीक है ना, कि administration of the district is good, administration of the district is bad. Okay, ठीक है ना, यहाँ का this school, this college administration is good and this college management is bad. How good? Okay, so this is the problem that became the reason to come for the analysis or to make the to clarify the differences between the administration and the management. So what is happening? What happened with this? Like different school of thoughts came together to discuss about any topic. Here also there are two broad school of thought, two broad views. Two broad views में से एक कहता क्या है, तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन व्यू पे डिस्कस करते हैं. वो कहता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वाइडर टर्म. ऑब्वियसली दिखने में ही बड़ा लगता है like management. Administration is a wider term encompassing the activities. Administration is a wider term encompassing the activities. क्या कहता है? Encompassing the activities like spelling out the policies, setting or set up the organizational structure, to define the objective. Objective define करते हैं तो क्या है भैया कि हमको this time we are going to achieve the target of employment generation. Suppose see, government of India is decided to achieve the target of employment generation in 2022. 10 million employment generation is the plan of the government in India. For that, it needs to frame the organizational, set up the organizational structure. ठीक है, और अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप होने से भी कुछ नहीं होगा, उसके लिए तो कुछ चाहिए भी. तो ऐसे बोल दिया कि नाउ वी आर गोइंग टू अचीव द टारगेट इन 2022 टू जनरेट द 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट. कैसे, हाउ, हु विल डू, हु विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस? वाह, तो इसके लिए दैट नीड्स द मिनिमम रिसोर्सेज ऑल्सो. ओके, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन to define the objective, frame the policies, arrange the set up the organizational structure and provide the minimum resources or the resources to achieve the goal. Okay, so this is the definition of the administration. In another way, क्या हो रहा है, पहले उसके पहले समझते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन कब होता है. एडमिनिस्ट्रेशन वेन एवर टू पीपल इज टुगेदर और एक जगह आते हैं, देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है ना, मीन्स इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी. वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो ना, इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी दैट इज अ कॉमन पर्पस, है ना, विद द कोऑर्डिनेशन दैट रिक्वायर्ड द कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन. Okay, in the last class we already discussed about it's a group activity, it's not single activity. ठीक है ना, so this is the administration. And in another way we can define the administration as a variety of component elements. देखो क्या होता है कि जब कोई प्लान करते, सपोज वी आर गवर्नमेंट लॉन्च मेक द पॉलिसीज अप टू कनेक्ट द कश्मीर टू कन्याकुमारी विद द एक्सप्रेस वे 4 लेन और 8 लेन. ठीक है, दे मेड द प्लान. सो
क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो इसमें इज नॉट सिंगल पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द पॉलिसी, दैट इज ग्रुप एक्टिविटीज एंड मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्टीज एंड दे केम टुगेदर टू डिफाइन द पॉलिसीज, डिजाइन द पॉलिसी, सेट अप द स्ट्रक्चर, ठीक है ना? सो इट इज एडमिनिस्ट्रेशन इज अ variety of component elements which together in action to produce the result of getting done a defined task, with which a group of people is charged, ठीक है ना? ठीक है, और we can say administrations primarily is the direction of people in association, direction of people in association, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ पीपल इन एसोसिएशन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक डायरेक्शन है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन एक डायरेक्ट करने वाला चीज़ है टू डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, डायरेक्शन ऑफ पीपल इन एसोसिएशन, ऑफ पीपल in association, okay, this is called, okay, this is primarily objective is क्या है इसका? To achieve some administration is a direction of people in association to achieve goal temporarily shared. ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी के लिए हम इसी काम में लगे हुए, ऐसा नहीं है। टेम्परली शेयर्ड गोल है कि भैया ये काम तुम्हारी है, तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द अथॉरिटी ऑल्सो। सो टेम्परली शेयर्ड गोल्स है, ठीक है। तो इससे इन अनदर वर्ड्स अगेन वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द एडमिनिस्ट्रेशन। इससे इंटीग्रेट, इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन एफर्ट्स। डेफिनेटली ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लोग एक जगह हैं टू फॉर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन एफर्ट, ठीक है ना, इट इज इंक्लूसिव प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन एफर्ट, इंक्लूसिव प्रोसेस है। सी द एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट इज गोइंग, सपोज दिस टाइम गवर्नमेंट प्लान टू कि हर गांव में हम टेलीफोन कनेक्टिविटी देंगे। इट इज़ द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना। तो व्हाट हैपेंड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे ह्यूमन इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होगा कि भैया हमको इस साल तक में हर घर बिजली होगा, हर घर फ़ोन होगा, ठीक है ना। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिस इज़ द वर्क ऑफ और टास्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। So how it is different from the management? So on the other hand, management's responsibility is क्या है, वन व्यू के हिसाब से कर, इट्स नॉट द फाइनल डेफिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द मैनेजमेंट, अ व्यू ऑफ ए वन स्कूल ऑफ थॉट, ओके। तो क्या कहता है कि मैनेजमेंट का काम है व्हाट एवर डिसीजन मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन or define decision made by the administration or define the objective, क्या हमें जाना कहाँ है, मतलब हमें जाना कहाँ है ये एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है, जाना कैसे है ये तुम जानो, लेकिन विल प्रोवाइड यू ऑल द फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज, ठीक है ना, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ठीक है ना। जाना कहाँ है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो बताएगा कि जाना कहाँ है। उसके लिए क्या खर्च लगेगा, बस से जाओ फिर जाओ, मतलब वो पैसे तुम्हें देगा कि भैया इतना पैसा है, तुम बाय एयर जाओ, बाय फेयर फ्री ऑफ कॉस्ट जाओ, दौड़ करके जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, यू हैव टू टेक द फ्लाइट और यूज़ द बस और बाय रिजर्व द टैक्सी और टेक द कैब और एनीथिंग एल्स। इट इज़ योर ड्यूटी एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द गोल by using the limited or restricted resources with the adherence of the plans, ठीक है ना, without diverging the goal, मतलब गोल को बिना without the diverting from the goal और डिमांड, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, डिफाइन करता है कि डिफिनीशन क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन
डिफाइन द ऑब्जेक्टिव और टास्क कि भाई यू सपोज कि तुम्हें आईएएस बनना है, इट इज़ समबडी डिसाइडेड कि भैया तुमने कि मुझे आईएएस बनना है, तो समवन एल्स टुक द डिसीजन कि मेरे बेटे, आज नाउ डेज नहीं, पहले होता था कि मेरे बेटे को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, तो इट इज़ द हु डिसाइड दैट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स। ऐसा होना नहीं चाहिए, ना ही होता है। नाउ डेज नो बडी इज गोइंग टू इम्पोज द एनीथिंग ऑन देयर वर्ड्स। ओके, सो क्या हो रहा है, आईएएस बनना है, इन दिस प्रोसेस दे क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें दी जाती है, भैया चलो रूम दिला देते हैं, राजेंद्र नगर आ गया, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया या नहीं किया, इट्स ऑन डिसीजन, एंड इन दैट प्रोसेस योर पेरेंट्स इज प्रोवाइडिंग द मिनिमम रिसोर्सेस, पैसे दे दिया, फी के लिए दिया, खाने के लिए दिया, हाइजेनिक कंडीशन रहने के लिए, दिस इज कॉल्ड। तो अब गोल तरफ स्ट्राइव कौन करेगा, यू, इट इज़ द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर पेरेंट्स हियर बिकम द प्ले द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू आर गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ द मैनेजमेंट। देखो ये कंप्लीट, ये एग्जैक्टली नहीं, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लेरिफाई द मीनिंग। ये नहीं हो सकता कि तुम मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट सिंगल या एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल नहीं होता है सब, ठीक है। तो ये, तो दिस इज द डिफरेंस। तो मतलब क्या है कि यू हैव मैनेजमेंट इज फंक्शन इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द गोल और टास्क डिफाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन within the limit set by the administration. Within the limit means resources, organization, or within the organizational setup also. ठीक है. So this is the difference by the maybe between the administration and the management. But there is a considerable controversy regarding the difference between the regarding the difference between the management and administration. In fact, in 1923, it was the Oliver Sheldon. Okay, he was the person who raised the question regarding the management and administration. See, this person in 1923 itself, he raised the question. इन्होंने पहला ये बात, he was the person who raised the question about the difference between the administration and the management. क्या कहते हैं ये, वही चीज़ जो सेम अभी डिस्कस किया, सेम बात ये कहते हैं। He says the administration is a decision making process. He emphasized administration is a decision making process. Definitely, this is and the management function is to executive one. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है डिसीजन लेना, अब मैनेजमेंट का काम है एग्जीक्यूट करना वो दैट डिसीजन को। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। एंड अगेन ही सेड, क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज द मशीन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब क्या कहते हैं कि ही सेड कि ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट मशीन फॉर द मैनेजमेंट, ये आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन द मोमेंट ही पास द स्टेटमेंट दैट की एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द डिसीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज टू टेक द इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग फंक्शन, एंड मैनेजमेंट इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जैसे ही इन्होंने कुछ बात पास की, हर जगह ऐसा ही होता है। वेन एवर यू आर गोइंग टू रेज एनीथिंग, देर बहुत से लोग आकर के अपना कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे। व्हाट हैपेंड विद दिस, द मोमेंट ही पास द स्टेटमेंट दैट कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस देर आर थ्री अप्रोचेस रिजल्टेड, दिस कंट्रोवर्सी रिजल्टेड इनटू थ्री अप्रोचेस के अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आकर के अपनी अपनी बातें कहने लगे, भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो फिर होता कैसा है? ओके, तो सेम थिंग हैपन विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे थ्री कंट्रोवर्सी हैज रिजल्टेड इनटू थ्री डिफरेंट अप्रोच। अच्छा, थ्री डिफरेंट अप्रोच। ओके, one school of thought is telling administration is above the management, yeah, and second school of thought is said नहीं ऐसा नहीं, administration is
अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर तो क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव द मैनेजमेंट, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ा है मैनेजमेंट से, मतलब कि जो अभी हमने डिस्कस किया उस बात को फर्स्ट स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट अप्रोच सपोर्ट कर रहा है। व्हाट हैपेंड विद द सेकेंड अप्रोच, इट इज टेलिंग समथिंग डिफरेंट। क्या कहा इसने, सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ मैनेजमेंट को बड़ा दिखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर डाल दिया गया। एंड थर्ड वन इज टेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट आर सिनोनिमस। तीसरा कहता है कि भैया आर सिनोनिमस, ठीक है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, सो हेयर one by one we will discuss what he said. Administration is above the management. Administration is the above the management is the same thing what happened with the Oliver Sheldon। क्या कहा, और हमने पहले वन व्यू में क्या डिस्कस किया, वही बात ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कि एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस and management have different functions, or in fact it is believed that it was the initiative of the Oliver Sheldon only, ठीक है, to differentiate between the administration and management। क्या कहते हैं भैया कि administration is the function of interest in the administration is the function of the industries concerned in the determination of the objective or the goal। ठीक है ना, क्या कहता है कि administration is the function in industry concerned with in the determination of the corporate policy, definitely corporate policy or the determination of the objective or the goal of the organization, either the private or the public one। Okay, so here again he is going to support as is consistent with the first view of the administration, and management is the function of the industry is concerned with the implementation of the policy or the execution of the policy, okay, or the program decided or designed or defined by the administration itself। okay, and तो मैनेजमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी, और जो हमने अभी बोला विद इन द लिमिट्स सेट बाय द लिमिट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज द डिफरेंस। सो ये क्या कर रहे भैया कि एडमिनिस्ट्रेशन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। सेल्डन फिर क्या कहते हैं कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैंने बोला था कि विद इन द डिफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वी विल डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज विदाउट द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और द मैनेजमेंट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द इफेक्टिव मशीन, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इफेक्टिव डायरेक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। सो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ओके इफेक्टिव मशीन क्या, and management is effective executive and the administration is the effective direction। तो मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, इफेक्टिव, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज डेफिनेटली प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन कि तुम्हें जाना कहाँ है, ठीक है ना। एंड इफेक्टिव मशीन कैसे, विदाउट, देखो सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट डजेंट मीन कि मतलब ये कंसीडर करो कि इट्स जस्ट लाइक ए आईसी इंजन और मोबाइल फोन और कंप्यूटर, दीज आर टाइप ऑफ मशीन्स। इट्स जस्ट लाइक वर्किंग एज अ मशीन मीन्स वी आर कंसिडरिंग दैट इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द गोल द पीपल बिकम और द ग्रुप, इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, मैन, मटेरियल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ all the things like man, material, market, okay, money, तो ये सब का combination is the machine। So definitely it is effective machine for the implementation of the goal। okay,
Administration determines the organization. Definitely, पहले in the first sentence, first view, we defined administration is to set up the organization for the formulation of, for the achievement of the goal. Okay, so organization management uses the administration. Definitely, management uses it. Okay, administration defined the goal. Management strives towards the goal. Administration. So organization is the machine of management in its achievement of the ends determined by the administration. This is the difference between the management and administration and the organization. What is administration, what is management, and what is organization. Okay, so अब हम next view पे आते हैं, है या नहीं? Administration is the part of management. Administration is a part of management. According to this school of thought, यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले यहाँ पे कह रहा है कि भैया मैनेजमेंट बड़ा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन अलग नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर नहीं है, बड़ा नहीं है. इवन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इट इज़ द मैनेजमेंट दैट इज़ बिगर देन एडमिनिस्ट्रेशन. अब विद इन द मैनेजमेंट देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, मतलब कि मैनेजमेंट का एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे है? अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट, मैनेजमेंट इज अ जेनरिक कंसेप्ट, जेनरिक टर्म फॉर द टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इन इंडस्ट्री और कॉमर्स. ठीक है ना? क्या कहता है? मैनेजमेंट क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल. मैनेजमेंट इज द टर्म, ठीक है ना? इट्स अ जेनरिक टर्म फॉर द टोटल कंट्रोल, total process of executive control in an industry or commerce. अब यहाँ पे सेकेंड थॉट में इस आदमी को याद रखो, ये स्कॉलर है ब्यार्च बोलो या ब्यार्क बोलो, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन. ओके, सो मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. डेफिनेटली इट्स अ सोशल प्रोसेस, क्योंकि कई लोग मिलते हैं इसमें से, मतलब सामाजिक प्रक्रिया है एक मैनेजमेंट, सोशल प्रोसेस है. इंटरटेनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव, इंटरटेनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेज इन द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और द गिवन पर्पस ऑफ द टास्क. ठीक है ना? तो क्या कहता है ये बेयर्च, क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ social process, according to management is a social process, entertaining the responsibility of an enterprises to fulfillment of a given purpose objective. मतलब ये social process है कि आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए. ठीक है ना? And in the same time he defined the administration as the part of the management. क्या कहता है? ये part of the management which is concerned with the installation and carrying out, which is the concern with the installation, स्थापित करने के लिए, carry out करने के लिए, of activity regulated and checked against the plan. Management responsibility involve. ठीक है ना? ठीक, तो ये है यहाँ पे. तो यहाँ पे फिर कहता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला है क्या कि इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ proper procedure to ensure adherence to the plans and ठीक है guidance, ठीक, guidance, integration, supervision of the personnel. मतलब क्या मैनेजमेंट का क्या काम है? डेफिनेटली पहले कहता है कि if they are going to strive toward the goal, it is the responsibility of management to guide. क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ने तो डिफाइन कर दिया गोल, भाई तुम अचीव करो, ऐसे करना है, तुम डिसाइड करो. सो कहता क्या? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू गाइड, इंटीग्रेशन, गाइडेंस, इंटीग्रेशन मतलब सबको जोड़ कर रखना है भैया टुवर्ड द गोल, कोई इधर से उधर ना जाए. गाइडेंस, इंटीग्रेशन एंड सुपरविजन मतलब क्या? पहले गाइड किया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, इंटीग्रेट के सबको जोड़ कर रखना है कि भागना, जो कोई इधर से उधर हो गया तो फिर गोल गया, finish the goal, means diversion of goal, displacement of goal. So it is the responsibility of the management to integrate the people. And we already passed the integrating the human effort. Okay, in the administration part,
integration and supervision of the personnel in compromising the enterprises and carrying out the operations, ठीक है ना। तो फिर डिवाइडेड, यहाँ पे ये आने के बाद फिर ये कहते हैं कि डिवाइड्स, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि मैनेजमेंट को अलग नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन से, कहा कि मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़ है, विद इन द मैनेजमेंट देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सो ही डिवाइडेड द मैनेजमेंट इन 3 लेवल। वन इज़ द टॉप मैनेजमेंट, मतलब घुमा फिरा कर काम उतना ही कहा है इन्होंने, एंड द मिडिल मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट। फाइनली केम देर आर तीन 3 लेवल पे डिफाइन किया है, टॉप मैनेजमेंट, ओके, टॉप मैनेजमेंट, ओके, मिडिल मैनेजमेंट है ना, एंड ठीक, एंड लोअर मैनेजमेंट। इनका कहना कुछ नहीं है, इन्होंने सब बातों को सिर्फ घुमाया है। अब बस ये कह करके जस्टिफाई किया गया है कि भैया कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है, एंड दिस वन, ठीक है, अच्छा लग रहा। देयर आर 2 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब कहा गया कि इनमें से 2 फंक्शंस है। अब इन्होंने क्या, देयर आर 2 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इनके हिसाब से क्या है भैया, 1 फंक्शन, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई काम करना चाहते थे तो हु इज गोइंग टू डिफाइन द टॉप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहा कि इट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग का काम होता है, सोचने का काम होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम होता है। तो क्या लिखा, रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ थिंकिंग फंक्शन, ठीक है, थिंकिंग फंक्शन। बात तो उतना ही है लेकिन घुमा के कहा गया है, ठीक है। और एंड इनका टास्क है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन विद द ऑल फंक्शन, सेटअप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन से इज एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज द middle management or lower management. Its responsibility of the lower management or the middle management is to execute the policies, implement the program policies within the limits set by the top management, ठीक है। तो ये कहता है कि नीड द डिपार्ट, तो इनका काम है कि दोनों काम वही कर रहे हैं अब, लेकिन विद इन यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने आप में भी एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो बस इन्होंने क्या किया कि डिफ्रेंशिएट करने की जगह पर इन्होंने क्या किया, बोला कि जो टॉप लेवल पे है उनका काम है थिंकिंग प्रोसेस है, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव है, एंड मिडिल एंड लोअर लेवल पे दे आर बिजी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम डिफाइंड और डिजाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। एंड सो देयर इज अ डिस्कशन, क्या है ये है इसका। तो फाइनली क्या कहते हैं इसको, तो व्यास ने ये बात बोल दी, ठीक है। तो थर्ड व्यू क्या कहता है अब, एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड व्यू क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन इज सिनोनिमस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट व्यू, सेकेंड व्यू एंड द थर्ड व्यू। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिमस, ओके ओके। ये है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एट द टॉप, इसको टॉप मैनेजमेंट कह रहा है, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट इन द लास्ट वन, लास्ट व्यू अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिनोनिमस। ये कहते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। और दिस स्कूल थॉट्स केम विद द फ्यूल क्या कहते हैं भैया, उनका तो यूनिवर्सल प्रोसेस है, पॉक, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, कमांड, ठीक है ना। सो ही इज टेलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इज, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट।
क्या है, तो बेसिक डिफरेंस, देर इज नो डिफरेंस, ही मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टर्म्स. कैटेगोराइज देर इज ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइंस which applied equally everywhere, equally at all institutions, whether it is the private, public, social institutions and or the government institution. मतलब इन्होंने कहा कि there is no difference between the administration and the management, there is no difference, but क्या है कि बस सारे ऑर्गेनाइजेशन में वो there is one principle, universal principle जिन्होंने दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग. ओके, इक्वली अप्लाइड, ठीक है ना, सब जगह ये इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है ना. ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स. ओके, एंड दिस वन इज वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है. क्या है कि ये कहते हैं क्या कि बिटवीन द टू लाइज मोस्टली देयर यूज. ये क्या इनका कहना है क्या है कि भैया सब जगह एक ही तरह से होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मेरा सब जगह इक्वली है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इट्स लाइज इन द टू डिफरेंट, मोस्टली इन देयर यूजेस, कहाँ यूज हो रहा है इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए मतलब इन्होंने एरियाज़ की बात की कि भैया डिफरेंट एरिया फील्ड में जब अप्लाई होता है वहाँ पे बात होती है, ना कि यानी डिफरेंस है कि एडमिनिस्ट्रेशन और द मैनेजमेंट में. ठीक है, सो दिस वन इज़ अ वेरी फेमस मोस्ट पॉपुलर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक, मोस्ट पॉपुलर व्यू. अब आते हैं कि इन द मॉडर्न एरा में क्या कहता है, मॉडर्न व्यू ऑफ द मैनेजमेंट और द एज मॉडर्न व्यू ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, मॉडर्न व्यू ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, मॉडर्न व्यू ऑफ मैनेजमेंट वही बात करता है जो इन्होंने कहा है कि, है ना, क्या है कि टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट. ओके, सो इनका कहना है कि एरियाज ऑल आर डूइंग द सेम थिंग. देयर इज नो, अगेन इन दिस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बट इट इज द एट द एवरी मैनेजर फ्रॉम perform both on this way, every manager perform both the function, administrative management and the operative management, but at the higher level of the management devote most of the time on policy formulation or thinking. ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या सपोर्ट किया है, इन्होंने कहा है कि भैया कि मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि भैया टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट है. और जो ये यहाँ पे आकर वेयर की बात सच हो रही है, मॉडर्न व्यू के अनुसार इनकी बात सच हो रही है. इन्होंने कहता है, इनका क्या है कि जो हर मैनेजर का काम है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिव मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में था बेयर्स के हिसाब से कि भाई जो हायर लेवल पे टॉप वर्क है, थिंकिंग प्रोसेस, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज है, कोऑर्डिनेशन है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. बट फाइनल कंक्लूजन क्या था, एवरी मैनेजर परफॉर्म्स बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, administrative management as well as the operative management, but higher level of the management is concentrating on or giving much focus on or spending much time on policy formulation, policy formulation, and the lower level management, middle or lower level management devote more of the time in operative management. So in today's business world, there is two terms are used interchangeably. There are two terms used in today's business world. There are two terms used interchangeably: administration and the management. Okay, and in fact,
The term administration is used for the non-business activities, and management term used for the business activity, for the economical, with the focus on economy. Even the very famous scholars like Peter Drucker especially give the emphasis and says that management is connected with the business activities and administration is connected with the government non-business activity or the non-private activities like the government activities, and administration management's main focus is on economy. So and one another view is said, telling कि भैया मैनेजमेंट का जो है जो कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी से है, एंड क्रिएटिविटी है, डायनामिज्म है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कनेक्टेड विद द दिस। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रूटीन वर्क है, डिटर्मिनेटिव फंक्शंस है, बट ऐसा नहीं है। व्हाट हैपेंड इन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड-19, even district administration performed very well and tried to convince, motivate the people by different way of creativity, like singing the song, convincing the people by different means. See the example of the I think you people remember the example of Bhagwat Prasad Pandey, SI, traffic inspector in Madhya Pradesh. He tried to control the people, convince the people, motivate the people in by different way, by connecting with the people in different ways. Okay, so it is also the creativity. So we cannot say that management only has the area of creativity. Administration is also trying to do the things in taking the risk. Okay. So finally we came in the conclusion, basic difference is not about the management and the administration, but the basic difference is the coverage of area of activities. Okay, general coverage of area of activity. Okay, so like generally the administration, the function covering the areas like planning, defining the objective, thinking, is the responsibility of the top management. It is the responsibility of top management which is known as the administration. We can call it administration. And those areas which are busy in implementing the policy and program is come under, or we can say we are using the term management. Okay, so it is nothing but a varied degree of varied in degree, differences in varied degree, not the exact meaning. Okay, so this is the difference. Okay, so finally we can come on the conclusion that पहले भी हमने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग गोल, मैनेजमेंट का काम है विथ द कॉमन पर्पस, पता होगा तो पर्पस, ओके, एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ओके, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, सेटिंग गोल है ना, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें, कोऑपरेशन है. Okay, and the last class we already defined the meaning of the difference between the cooperation and the coordination. Okay, so there is no need to discuss the same thing again and again, and today we will discuss the meaning of purpose and objective of the management also, and how it is different from the administration. Okay, so this one is administration. Okay, so इससे एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ग्रुप एक्टिविटी, सबको पता है ग्रुप एक्टिविटी है. कैसे है? सी इन ए डिस्ट्रिक्ट, कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना. इन ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, नीचे लेवल पे क्या होते हैं? कांस्टेबल भी होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, ऊपर डीजीपी होता है, मान लिया, ठीक है.
SI होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, और इसी को SI भी ASI कहते हैं, ASI कहते हैं, ठीक है ना। इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, DSP, डिप्टी, ठीक। दीज आर द हायरार्की। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज टू maintain the peace, prosperity and to control the crime and or to maintaining the law and order of the district, ठीक है। But it is the person who is going to coordinate, giving the command or control, okay। So it is a group activity, ठीक है, group activity with the common purpose is to maintain the law and order with the क्या है, predetermined objective है, predetermined objective, okay। This is the difference। तो मैनेजमेंट क्या है भैया? सो यहाँ पे क्या है कि पहले मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्या करते हैं मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन थिंग्स सेट्स द राइट थिंग्स, ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स द राइट थिंग्स एंड मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट इसको स्ट्राइव कर रहा है टुवर्ड्स द गोल, क्या है? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर और टू रिड्यूस द क्राइम, रिड्यूस द क्राइम इन द डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो it is the responsibility of the management to strive towards the goal decided by the administration itself, okay। So it's a predetermined goal and so administration sets the right things and management sets things right, okay। इसको कहते हैं प्रशासक तय करते हैं सही कार्य को कैसे करना है। प्रशासक क्या करते हैं? तय करते हैं कि सही कार्य को कैसे करना है, और प्रबंधक तय करते हैं कि ये कार्य को सही ढंग से कैसे करना है। This is the difference between the management and the administration. So management is the, अब हम फोकस करते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या कहता? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस and what is the management? The management is a process. मैनेजमेंट, ओके। मैनेजमेंट क्या है? इज अ प्रोसेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ 3, विद द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है 3 क्या है भैया? इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। सो हाउ इफिशियंसी, ठीक है। तो दीज आर द 3। तो हाउ इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। पीपल अगेन यूर यूजिंग द टर्म, यार इफेक्टिव है, इफिशिएंट है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल है, नहीं है। So before passing or using the term, we need to know the difference between the economy, efficiency, economy and effectiveness, okay। तो what is efficiency? क्या है बताओ? See, what is efficiency? Efficiency ये मैथमेटिकली कहो तो इसे मैकेनिकल टर्म एंड इज द इनपुट रेशियो ऑफ इनपुट is to output, input is to output। suppose you planned कि भैया हम efficiency के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। efficiency रेस इनपुट to output, ठीक है। तो इसमें कहते हैं सपोज यू बी प्लान टू स्पेंड 100 रुपीज़ इन समथिंग। आपने शेयर में 100 रुपये लगाया या कोई काम करने के लिए 100 रुपये लगाया, आप हैव द प्लान टू अर्न समथिंग, ठीक है ना। तो अगर हम इस मशीन पे हमने 100 रुपीज़ लगा दिया और वी आर गेटिंग द 120 रुपीज़, ओके।
So definitely it is providing the efficiency. समझो इनपुट इज टू आउटपुट मीन्स इनपुट से आउटपुट अगर ज़्यादा आ रहा है, अगर मिनिमम काम करके ज़्यादा चीज़ें मिल रही, दैट इज इफिशियंट. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द इफिशियंट वन. व्हाट अबाउट इफेक्टिवनेस? ठीक है, इफेक्टिवनेस इज कि भैया हमने प्लान किया कि 100 रुपये कमाना, खर्चा करना है, हमको 150 कमाना है, बट इन स्टीड ऑफ गेटिंग 150 रुपीज़ or 200 rupees, whatever the plan, suppose we have the plan to spend 100 rupees and will get will have the plan to get 150 rupees. Okay, 150 rupees, and we are just getting 140 rupees, 140 rupees, 140. So definitely it is efficient one, 140, but not hitting the target. Our target was to achieve 150 rupees. Okay, and we have just got 140 rupees, but means it is the efficient one. But the plan, the purpose, the program or policy or the person is efficient but not the effective. Suppose another example कि हमने एक मशीन खरीदा, ठीक है, इस मशीन से हम वी विल अर्न 100,000 रुपीज़ पर डे. गन्ना, चलो शुगर केन की मशीन से गन्ना जूस सप्लाई पे बेचने के लिए हमने, ठीक है. सो वी स्पेंड 10,000 रुपीज़ फॉर दैट पर्सन एंड वी हैव द प्लान टू अर्न एवरी डे 1,000 रुपीज़. ओके, सो बट वी आर नॉट गोइंग टू हिट द टारगेट, बट वी आर इन द प्रॉफिट बट नॉट hitting the target. So it means the machine is efficient in providing the giving the benefits, it's a beneficial, but not hitting the target means not effective one. So those things which are effective is efficient, but those things which are efficient is doesn't mean it is effective also. Okay, this is the difference between effective and economy and economy again, efficient and effectiveness. So what about economy? Economy means minimum use of resources to achieve some economy. तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज टू अचीव सम डिजायर्ड गोल. ठीक है ना, यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज टू मतलब क्या है कि मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके हम अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमी. तो इकोनॉमिकल है या नहीं है, बट विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ओके, सपोज वी मतलब कि अगर मान लो कि हमें एक पेन बनाना है, ठीक है ना, तो हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. इट डजेंट मीन वी आर गोइंग टू कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द पेन. सो विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स we are going to get the objective or desired objective, then it is an economical one. This is the difference between the three: efficiency, economy and effectiveness. And what about the organization? Last one. Organization is the combination of 5 things. 5 M. ऐसे याद रख लो. Man, material, okay, मनी, और क्या हो सकता है, मार्केट and method. Okay, these are the things. These are the organization, the combination of these few things. And we already discussed that जहाँ पे there are any administration organization, we have already discussed that जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन होगा. बिना ऑर्गेनाइजेशन का देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन और द मैनेजमेंट. सो फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेशन और द मैनेजमेंट it is necessary condition is the organization. Okay, so I think this is enough content to clarify the meaning or the issues raised by the Oliver Sheldon
about the difference between the management and the administration or the organization. Okay. Anything else? No. Okay. Thank you.